अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम मिस. Okay, beta. Now, class, you take out your book and see page number 143. Page number 143. Now, have you take out? Class, do you remember in last class we have done that test yourself of page number 143. So you have completed? Yes, Yes, teacher. teacher. Okay. Now, class, the new topic we start levers and movement. Okay. Just a minute. Okay, has become. Okay. So now, yes, who want to read? Just a minute. These are also from. Yes. Okay. Now I tell. Yes, Aksa, you start reading. Okay, teacher. Levers and moments. Forces can have a turning effect. This means forces can make things turn about a turning point or pivot. The diagram shows a spanner being used to turn a nut. The force has a turning effect on the nut. This turning effect can be increased either by using more force or by using a longer spanner. In the exa- in the in the example above, the spanner is acting as a lever. A lever is a simple machine. It helps to make work easier. Okay, In the diagram, stop. Okay, stop. Okay. okay, First, I think I explain this. Then the next paragraph I will explain. Okay. So now class we start about the lever and the movement. Our topic is lever and movement. Lever is just like a machine. Okay, it's a simple machine. Okay, this machine helps to work easier. Okay, understand? Lever is a simple machine and it make your work easier. Lever basically the point on where the force is effect. Okay, for example, first picture you see this picture about the spanner. Okay, you see this type of spanner. You have seen this type of spanner at your home also. Okay, we have the different type of spanner you see on your screen also. These are the different kinds of the spanner. Okay, uh, basically this spanner we use to turn the nut. Okay, you have seen we are using in the simple language we are calling this spanner. हम अपनी normal language में इसको क्या कहते हैं spanner को? You have no. Okay, now class हम उमर I think इसको हम क्या कहते हैं? I think पाना कहते हैं शायद. Okay, so this spanner we use to move the nut. आपने देखा होगा nuts वाला खोलने के लिए you know about the nut. नट वाला पता है ना क्या होते हैं? Yes, class. Do you know Yes, about the teacher. nut? yes, teacher. Okay. So this nut uh, which are used in the different objects. Okay. So for the opening and closing of this nut, we use this type of the machine, simple machine, just like a spanner. The spanner is when it's used for moving the nut. This spanner is used just like a lever. लेवर जो है वो एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है. ओके, so this pen is just act like a lever. Okay, and it act on a one point. This is the turning effect of the any object. Okay, or the turning effect of the force. So you see, if you want to open the nut, for example, if you want to open the nut, okay, so you use this spanner, but the nut having the rust, अगर nut जो है वो उस पर rust है, so it difficult to open. So for this purpose what you do, एक आप स्पैनर है, स्पैनर को आप नट को जो है वो ओपन करने के लिए यूज कर रहे हैं या क्लोज करने के लिए. आपने एक नट को ओपन करना चाहा, वो नट जो है उस पर रस्ट लगा हुआ है, तो फिर उसको वो स्पैनर से नहीं ओपन हो रहा, तो अब क्या करेंगे फिर आप? व्हाट शुड यू डू? यस अब्दुल आदि, क्या करेंगे? बॉयज का तो ये काम है जी. यस आदि, व्हाट शुड यू डू?
when you want to open the nut with the help of a spanner, but nut is not open. So what you will do? Yes, anybody? Yes, what you will do? It means if the nut will not open, so you increase the force, या तो आप अपनी force को बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे, या जो है वो आप क्या करेंगे, you increase the distance, okay, and from the for example you use the long spanner, आपने एक long spanner use किया, it means you increase the distance, या तो आप distance बढ़ा देंगे या फिर आप force को बढ़ा देंगे. अगर आप distance बढ़ा देंगे, जब भी जो है वो आपकी जो है वो force ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो है वो ये जल्दी जो है ओपन हो जाएगा, easily it open it, okay. And just a minute, okay. So now you tell me. Now you understand, beta. If you want to start this, okay, okay. Yes, beta. What happened? Okay. So now class. Yes, the new student, you open the page number 143. Page number 143. We are discussing about the lever and movement. Okay, lever is a just simple machine, and this machine we use to make the work easier. Okay, lever एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को आसान बना देती है. ठीक, अब जो है वो हमने जैसे बात की, फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द स्पैनर. You see the spanner in your book also, on the screen also. We have a different kind of spanner. We use it, and this spanner now we use as just like a lever. Okay. Uh, for example, if you open the door, okay, if you know if your door having the handle like structure, okay, अगर आपके door पे handle लगा हुआ है, so you see this handle is move on a one point. आपका जो handle होता है door का, वो एक point पे जो है move कर रहा होता है, okay, this point is called the lever. ठीक है, ये point है जो आपके lever की तरह से काम करता है, जो कि आपकी force को multiply करता है. This lever is multiply the force. Okay, here we are discussing about the spanner. When we use the spanner, for example, if the if you want to open the nut, okay, so we use the spanner. हम कहीं पर हमें कहीं किसी जगह पर किसी मशीन का कोई नट ओपन करना होता है या नट को जो है वो फिक्स करना होता है, so we use this type of spanner. हम इस टाइप के स्पैनर को यूज करते हैं. ठीक है, मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन किया था, मैंने इसका आंसर भी दिया था, दोबारा वो क्वेश्चन कर रही हूँ. अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं? मैंने आपसे कहा कि इफ यू वांट टू ओपन द नट बट दिस नट हैविंग द रस्ट. ठीक है, आपने एक नट को खोलने की कोशिश की, मगर आपसे नहीं खोल रहा क्योंकि उस पर रस्ट लग गया. ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? यस एनीबॉडी? अब मैंने भी अभी आपको उसका आंसर दिया था, कुछ समझ में आया था या नहीं, मुझे बताइए जल्दी से. अगर आपका जो है वो नेट ओपन नहीं हो रहा तो आप अब क्या करेंगे आप? यस माही, यू नो द आंसर? No, miss. नो. अच्छा जी. यस अब्दुल हादी, वॉइस कैच दिस टाइप ऑफ अब्दुल्ला. अच्छा ओके क्लास, अगेन आई टेल नाउ प्लीज यू लिसन केयरफुली. मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ, गौर से सुनिए. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इफ यू वांट टू ओपन द नट, ओके, किसी जगह नट तो पता है या नट भी नहीं पता आप लोगों को, कि खाने वाले नट नहीं है वो नट थोड़ी समझ रहे आप. ओके, इट्स नॉट अ ड्राई फ्रूट्स. ओके, आई एम टेलिंग अबाउट द नेल्स. जो नेल्स होते हैं ना, ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. इसमें नेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है. एक नेल को हम नट कहते हैं, ठीक है, जो स्क्रू वाला होता है. Okay, the screw type nail is called the nut. Okay, this nut we use it in different machines or in different things. We also use in the furniture this type of nails or nuts. Okay, so when we want to open this nut, okay, so we use this spanner. Spanner देख के समझ में आ रहा है spanner क्या चीज है? स्क्रीन पे भी है, आपकी बुक में बना हुआ स्पैनर है क्या? Yes class, are you sleeping? Yes, teacher. Understand? Yes, Yes.
Yes, teacher. अच्छा, अब ये स्पैनर जो होता है, हम इससे हम क्या करते हैं, हम नट को ओपन करते हैं। अब चलिए मैं आपको समझा रही हूँ, दोबारा और सुन लीजिए, क्वेश्चन करना तो बेकार है, आप लोग आंसर ही कोई नहीं दे रहे हैं। ओके, सो नाउ यू लिसन, आप अपनी बुक में और से देखिए। ओके, व्हेन यू वांट टू ओपन दिस नट, ओके, so normally you use the spanner and you open the nut. Okay, but if the nut having the rust or any reason, if the nut is not open, so what should we do? We इंक्रीज द फोर्स। नॉर्मल क्या होता है, हम जो है वो अपने स्पैनर से खोलते हैं, खुल जाता है, बाद दफा नहीं खुलता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी फोर्स को बढ़ा देते हैं, हम ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। या तो हम फोर्स को बढ़ा देंगे, या फिर उन्होंने कहा कि हम वी यूज लॉन्ग स्पैनर, हम एक बड़ा वाला स्पैनर यूज़ करेंगे। बड़ा स्पैनर क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर हम दूर से फोर्स को इफेक्ट करेंगे तो उसका फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फोर्स ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी अगर जो है वो हम डिस्टेंस को भी बढ़ाएंगे। ओके, यानी कि हमने एक लंबा स्पैनर यूज़ कर लिया तो फोर्स भी बढ़ा दी हमने, और हमने डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, इससे फोर्स ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी और यू इजीली ओपन योर नट। ठीक है, वो नट जो आप इजीली आपको ओपन कर सकेंगे। ठीक है, सो you see in your picture on page number 143 that in the Spanish right turning point. Okay, turning point क्या है कि the turning point on the nut when you apply the force and this nut is open or closed. Okay, so this is the turning point. Now a class you see another example, हम दूसरी एग्जाम्पल देख के शायद आपको इससे कुछ और समझ में आ जाए। ठीक है, now you see another example. Okay. Now, next. Yes, Aliza, you read. Last paragraph of page number 143. Okay, Aliza, no problem. Sure. Teacher, can I read? Yes, read. In the diagram, a small force, the effort at the end of a long lever, can overcome a large force. The load flows through the pivot. The lever acts as a force multiplier. The effort moves a large distance, but the load is only raised a little. Raise The a load little. is the Hmm. The load is the object you are trying to move. The effort is the force applied to move the load. The pivot is the point at which lever turns. Okay. Now, class. Now you see the another example in your book also on the screen also. Okay. In this diagram, if you see in your book, so at the one point they put larger force or larger load. Okay, you see एक आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इट्स अ बिग रॉक. Okay, this big rock put on the one side of the lever. Okay, and on another side they apply force. ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को या लोड को ज़्यादा इजीली हम जो है वो उसको हम एक जगह दूसरी जगह या उसको जो है हम इजीली जो है वो रेज कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस यू सी द वन सेंटर पॉइंट इज हेयर। एक आपको एक सेंटर पॉइंट नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है इस डायग्राम में, इस यहाँ पे भी है, आपकी स्क्रीन पे भी है और आपकी बुक में भी है। सो नाउ यू सी दिस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इन द डायग्राम। Yes, miss. Okay, this Yes, miss. triangle basically the triangle is called the pivot or axis. Okay, this pivot is the point where you apply the force. यो point है जहाँ पे आप force को apply कर रहे हैं, and because of this pivot, when you apply a little force, but this force is effective and this force is multiplier, and you easily um, take out this load. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपसे कहा है कि एक साइड पर उन्होंने एक लोड रखा है। ओके, एंड अनदर साइड दे अप्लाई द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द एफर्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो इस यहाँ पे एक हैवी लोड रखा है और आपने 1.1 मीटर के डिस्टेंस से आपने इसके ऊपर जो है वो 300 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस पे एफर्ट जो है वो आपने इस पे अप्लाई किया। ओके, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स बट दिस लोड इज रेज ओनली अ लिटिल। ठीक है, आपने इसके पास 300 न्यूटन की जब फोर्स अप्लाई की तो आपने देखा कि आपका जो लोड है बहुत थोड़ा सा जो है ऊपर गया। अब उन्होंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी डॉटेड लाइन से शो किया है।
यानी कि ये आपका जो लोड है इसे 0.2 मीटर जो है वो रेज हुआ, ठीक है, जब आपने जो है वो 1.1 मीटर की डिस्टेंस से 300 न्यूटन की एफर्ट इसके ऊपर अप्लाई की, ठीक है। ओके, नाउ द यू नो द पाइवट इज द पॉइंट एट विच द लेवर टर्न। ओके, लेवर क्या है, बेसिकली जो है वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका लेवर कहलाएगा या पाइवट कहलाएगा। ओके, नाउ क्लास, नाउ यू सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 144। अब एक दो एग्जाम्पल और इसके देखेंगे, शायद आपको बेहतर वक्त समझ में आ सके, ठीक है। यस अब्दुल्ला, यू रीड पेज नंबर 144। मैं दोबारा इसको आपको जो है पूरा रीडिंग कंप्लीट करके एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जी बेटा अब्दुल्ला, यू रीड इट। अब्दुल्ला, आर यू लिसनिंग? यस, is anybody you want to read, read it? Okay, yes Hajar, start to read page number 144, first line. Yes, start reading. Yes Hajar, are you starting reading? Okay, yes class, we have limited time. Okay, so, yeah, anybody if you want to read, So can I read? just start reading. A turning effect of a force is called a moment. Just as in the examples on the previous page, the size of the moment depends upon two things: the size of the force and the distance of the force from the pivot. Moments can be calculated using this equation. Okay. Moment equals to force multiplied by distance from the turning point pivot. Okay, now class, the turning effect of a force is called moment. Okay, now class understand the turning effect, what effect, turning effect जो होता है वो moment का, तो for example I have told you about this. When you open the door from the handle, okay, this handle is present in your door, so you apply the force and the door is open. Okay, why door is open? Because you apply the force on one side, and in the center you see your fulcrum or lever is used. Okay, and this lever and pivot increase the force. ये पाइवट जो होता है, ये जो लेवर होता है, ये फोर्स को जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इसकी वजह से यू इजीली डू योर वर्क। बेसिकली इस लेवर का काम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो आपके नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपने सीसॉ देखे हुए आप सबने। ओके, इन दिस सीसॉ यू सी वी आर बैलेंसिंग द थिंग्स, ठीक है, वो भी हम अभी आगे टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि हाउ यू बैलेंस द थिंग or balance the object on the seesaw. Okay, here now we discuss basically when you want to uh, lift any load. Okay, this load is heavy, so you use the lever or pivot, ठीक है। You see on the screen पे देखिए, आपको ये एक ब्लू कलर का ट्रायंगल नजर आ रहा है। दिस ब्लू कलर ट्रायंगल बेसिकली द पाइवट और लेवर, ठीक है। लेवर क्या है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स इफेक्ट कर रही होती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स इफेक्ट कर रही है। आपने इसके एक साइड पे आपने लोड रख दिया, ठीक है, एंड द अदर साइड यू अप्लाई द एफर्ट ऑफ फोर्स, इस साइड पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके बुक में जैसे डायग्राम में मौजूद है, पेज में 143 पे देखा कि एक बिग लोड है। ओके, यू वांट टू लिफ्ट दिस बिग लोड बाय द हेल्प ऑफ द फोर्स। आप उसको नॉर्मली आप उसको जो है वो इस लोड को अपने हाथों से अगर उठाने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप उसको नहीं उठा सकेंगे। ओके, बट इफ यू वांट टू लिफ्ट दिस लोड, सो यू यूज दिस लेवर। आप इस लेवर को अगर यूज करेंगे, एक साइड पे आपने इसको लोड को रखा, दूसरी साइड पे जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये लोड इजीली लिफ्टेड बाय दिस लेवर। इस लेवर के जरिए से आपका जो लोड है वो इजीली जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो this lifting of the load by the help of this lever. Okay, and this point of the where the force is effect, this is called the pivot point, or this is called the moment. Okay, a turning effect of a force is called moment, okay. um,
किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपने जैसे मैं कहा स्पैनर के थ्रू यू ओपन द नट, ओके, एंड फ्रॉम दिस हेल्प ऑफ दिस लेवर यू लिफ्ट द लोड, okay, this is a turning effect of the force is called the moment. For example, here given the example, if you want to calculate the moment, okay, so it is important to you multiply the force with the distance, okay, when you multiply the force with the distance, so you calculate easily calculate the movement. For example, यहाँ पे आपके example में देखिए इसी पेज 144 पे आपको यहाँ पे जो है वो पर्पल कलर से नीचे जो फॉर्मूला है उसके हिसाब को क्या दिया है, यू लिसन, द मूवमेंट ऑन द राइट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल 300 न्यूटन, ओके। ये आपको जो है वो पीछे जो आपको एग्जांपल दी गई है लोड वाली, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आपकी जो है वो राइट साइड पे जो है वो जो कि मूवमेंट इफेक्ट कर रही है, जो कि क्लॉकवाइज इफेक्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड द 300 न्यूटन, ओके, एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट इज 1.1 मीटर। आपको आपके बुक की डायग्राम नजर आ रही है पेज 143 पे, पेज 143 पे डायग्राम को देखिए बेटा। Yes, teacher. You see the diagram. On the right hand side you see written efforts. Effort लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है 300 न्यूटन। नजर आ रहा है सबको ये चीज? Yes, teacher. ठीक है, ये 300 न्यूटन एफर्ट है जो आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस आपके देखिए नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस 1.1 मीटर, okay, this is 1.1 meter is the distance and 300 newton is the effort. When you multiply this effort with the distance, so now you get it the moment. Yes, mine, have you any problem? No, miss. If you have any problem, beta, you write your name here and there. So if you have any problem, so tell. Okay. So when you multiply this distance with the force, okay, with, this is a distance. This is a distance. Okay. यहाँ पे आपको 2 डिस्टेंस बता रहे हैं। एक डिस्टेंस ये पाइवट से आपका लोड तक का है और एक आपका डिस्टेंस है आपके एफर्ट से पाइवट तक का, ओके। सो आपकी बुक में जो है वो मेन डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया है पूरा ओवरऑल डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द लोड टू द एफर्ट इज 1.1 मीटर। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस एफर्ट with the distance, so now you get it, your you see your answer is 330 newton meter, okay. The movement is clockwise. You know the movement of clockwise or anti-clockwise? Yes, Okay. teacher. Yes, class. Yes, all the class, you tell me, you understand how the clockwise movement affect or how the anti-clockwise. Clockwise movement you see on in your diagram. This is the clockwise movement, okay. For example, this is आपको screen share हो रही है, this is the movement on the cursor, okay. This is the clockwise movement when the you know the clock is moved from 12 to the downward. This is called the clockwise movement, okay. आपके पास clock मौजूद है, आपने देखा होगा clock पे जो है वो from 12 to when this uh, movement is occur from up to down. This is the clockwise movement, and from down to up, this is called the anti-clockwise movement, okay. From down to up, this is anti-clockwise movement, and from up to down, this is the clockwise movement. तो आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि in the clockwise movement, okay, when the effort is effect on the load, so this load is lifted, okay, and this effect is called the movement. The clockwise movement is greater than the anti-clockwise movement, so the load is lifted. ठीक है, अगर आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से, तो उसका मतलब है फिर आप इजीली जो है वो अपना लोड जो है वो लिफ्ट कर लेंगे। यू सी हेयर, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या की, फोर्स अप्लाई की इस F1 पे, अप्लाइड इनपुट फोर्स, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की, दिस इज द लेवर, ये आपका सिंपल मशीन है लेवर की, यहाँ जो एक पाइवट पे मूव कर रही है। हेयर द फोर्स, यहाँ पे जो है वो आपके पास लोड मौजूद है, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम हेयर, दिस लोड इज लिफ्टेड, ठीक है, आपका लोड जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, आसानी से उठ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मे बी फ्रॉम द इजी एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ द सी सॉ, यू अंडरस्टैंड इट। यहाँ तक कितनों को समझ में आया है, बताए, कुछ बताएंगे? यस, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड? यस क्लास, now here we are discussing about the lever. Lever is a just simple machine, just like a seesaw. You have seen the seesaw? seesaw देखा है? Yes, Yes. teacher. Yes, teacher. देखा है ना? seesaw में कैसा होता है? देखिए, you now I show you seesaw. देखिए ये रहा seesaw.
दिस इज सीसॉ, ऐसे ही होता है सीसॉ, Yes, ठीक है। teacher. अब इस सीसॉ के अंदर क्या होता है, दिस सीसॉ जस्ट लाइक अ लेवर, ये एक लेवर की तरह की मशीन है, ठीक है। लेवर क्या होता है, सिंपल मशीन होता है, ऐसी सिंपल मशीन जिससे हमें जो है वो हम सिर्फ क्या करते हैं, लोड बेयर कर रहे हैं, लोड को लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, लोड लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। सो इन द सीसॉ यू सी ऑन द बोथ साइड वी अप्लाई द लोड, ठीक है, दोनों साइड पर लोड को अप्लाई करते हैं। ये है वो लेवर का सबसे बेसिक पॉइंट, इसे कॉल्ड द पाइवट। ये पाइवट और एक्सिस है जिसके ऊपर ये आपका पाइवट इज अ पाइवट, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पहली पिक्चर में बताया था कि एक साइड पे यहाँ पे एक लोड रख दिया था, ठीक है, और दूसरी साइड पे वो फोर्स को अप्लाई कर, तो जैसे जैसे वो फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ कहा था कि 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, और ये उनका जो डिस्टेंस था उनका 1.1 मीटर का था। जब उन्होंने उसको फोर्स अप्लाई करी तो आपका जो वेट था, जो आपका जो लोड था ऑब्जेक्ट, वो थोड़ा सा ऊपर उठा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं उसको ज्यादा उठाएंगे, उसका मतलब या तो आपको अपनी फोर्स डिस्टेंस जो है उसका इजाफा करना पड़ेगा, डिस्टेंस में इजाफा करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्लास दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से रीड करें, ठीक है, वहाँ पर टाइम कम रह गया तो ताकि हम लिख सकें कि आपको और आगे समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो नाउ यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, मोमेंट इन बैलेंस। यस, हु वांट टू रीड इट फास्ट, जल्दी से जो रीड करना चाहे जल्दी से रीड करें। यस, हाजरा, यू वांट टू रीड, स्टार्ट बेटा, मोमेंट इन बैलेंस। यस, स्टार्ट। यस, हाजरा बेटा, टाइम लिमिटेड है बेटा, जल्दी से करें। आई थिंक शी हैज प्रॉब्लम इन माइक. Okay, if you have any problem, so yes, anybody, anybody other? You want to read, yes, boys? Any boys? Yes. Yes, Ahmed Ansari, read. Moments in balance. People have to sit on each side of a seesaw to make it balanced, but they do not need to be the same weight. A heavy person and a light person can make a seesaw balance. It all depends on where they sit. The pictures on the right show two seesaws. Seesaw 1 is balanced. The clockwise movement 600 Newton multiplied by 2 meter is Is equals equal to 1200 Newton meter. 1200 Newton meter is the same as the anti-clockwise movement 400 Newton multiplied by 3 3 meter. 3 meter is equals to 1200 Newton meter. Hmm. What about seesaw 2? The clockwise moment is 400 Newton multiplied by 1 meter is equals to 400 Newton meter. The anti-clockwise moment is 200 Newton multiplied by 3 meter is equals to 600 Newton meter. The seesaw tips down on the left side. Okay. Now, class, you see, this is the seesaw. Okay, and you know how the seesaw act. For example, class, we know on the seesaw the two people are sit. Okay. Now you see, okay, the two people are sit on the seesaw, okay, and it is not important both having the same weight, ठीक है। आपने देखा होगा कि seesaw के ऊपर जो है वो two children are sit, okay, and it is not important both are having the similar weight, ठीक है। both are balance the seesaw, देखिए वो दोनों जो होते हैं वो seesaw को balance कर लेते हैं। how they balance the seesaw? कभी देखा है आपने इस तरह के सीसॉ पे? आप सभी आई थिंक बैठे होंगे, आप सबने देखा होगा। यू इजीली बैलेंस दिस सीसॉ, बट हाउ यू बैलेंस दिस सीसॉ? दिस सीसॉ बेसिकली एक्ट जस्ट लाइक अ लेवर। ये जो आपका सीसॉ है ये बिल्कुल एक लेवर की तरह काम करता है। यू सी देयर इज अ पाइवट, दिस लेवर इज मूव, ओके। नाउ क्लास, इन योर बुक दे आर शोइंग अस टू सीसॉ। यहाँ पर उन्होंने टू सीसॉ जो है आपको शो किए। इन द फर्स्ट सीसॉ यू सी on this first seesaw the two children are said John and Tom, okay. The John weight is 400 Newton and the Tom weight is 600 Newton, okay. Now their distance from the pivot is different. You see the John is set, Tom is set near the pivot 2 meter, okay, and the distance from the pivot is 2 meter, and the John distance from the pivot is 3 meter, okay. So when you multiply, you use this formula of moment. Moment का जो formula है force multiplied by distance. So you see when you multiply this 400 Newton with the 3, your answer is 1200 Newton meter,
ठीक है, और से आप फर्स्ट पिक्चर को देखिए, पेज नंबर 144 की फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट सीसॉ. ओके, जोन weight is 400 Newton, okay, and their distance from the pivot is 3 meter. Okay, so when you multiply this 400 with the 3, your answer is 1200. 4 3 is 12, 200 Newton meter. Okay, now that you come on the Tom weight is 600 Newton. Okay, and he sit near the pivot, and the distance from the pivot is 2 meter. So when you multiply this 600 with 2, so your answer is 1200 Newton. It means on the both side they are balanced. दोनों साइड इसकी बैलेंस है. हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों का वेट अलग है, एक का वेट 400 न्यूटन है तो दूसरे का 600 न्यूटन है, तो दोनों का वेट जो है वो इस सीसो को बैलेंस नहीं कर सकता, बट देयर डिस्टेंस इज बैलेंसिंग. लेकिन इनका जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ये इस सीसो को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो मूवमेंट मालूम होता है. सो द मूवमेंट ऑफ द बोथ चिल्ड्रन इज सेम. ओके, बिकॉज ऑफ दिस द सीसो इज बैलेंस. सीसो नंबर 1 इज बैलेंस. In your book page 144, the first seesaw is balanced. Why it's balanced? Because both children movement is same. Movement क्या होता है? When you multiply the force with the distance, this is called the movement. जब आप force को उसके distance से multiply करते हैं तो आपको movement मिल जाता है. ओके, और दोनों स्टूडेंट का, दोनों चिल्ड्रन का जो मूवमेंट है इसका सेम है, 1200 न्यूटन मीटर. ठीक है, इसी वजह से सीसॉ इज बैलेंस. ये सीसॉ जो है वो बैलेंस हुआ हुआ है. ठीक है, नाउ यू सी द सेकंड सीसॉ. The second seesaw, you see one student Jill weight is 200 Newton, okay, and the Jack weight is 400 Newton, and the distance of the Jill from the pivot is 3 meter, and the Jack distance from the pivot is 1 meter. Okay, so now you see what is the movement of this two student Jill and Jack. Yes, now anybody tell me, Jill और Jack का जो है वो क्या डिस्टेंस आ रहा है? सॉरी, मूवमेंट क्या रहा है? 600 न्यूटन मीटर है और जैक का 400 न्यूटन मीटर. यस, गुड, वेरी गुड. ओके, सो जैक मूवमेंट इज 400 न्यूटन मीटर एंड द जिल मूवमेंट इज 600 न्यूटन मीटर. ओके, सो इट मींस दिस सीसॉ इज नॉट बैलेंस. इसका मतलब ये सीसॉ जो है वो आपका बैलेंस नहीं है. ओके, एंड दिस मूव इज एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसकी जो है वो मूव करेगा. क्यों? क्योंकि जो है वो सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो है वो एक साइड पे जो 400 न्यूटन, हालांकि फोर्स ज्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कम था लिहाजा इसका मूवमेंट कम आया है. ठीक है, इसका मूवमेंट कम है और जो जिल है उसका मूवमेंट ज्यादा आया है. तो जाहिर सी बात है फिर जो है वो जहाँ पे जो है वो आपको मालूम है कि लो मूवमेंट कम होगा, वो साइड जो है ऊपर की तरफ जाएगी. सो दिस साइड इज मूव इज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ. अब आप उल्टा मूव कर रहे हैं, अपनी क्लॉक के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं. क्लॉक आपकी कैसे आती है? आपकी आती है ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड द जिल जैक इज मूव अप. ठीक है, जिल इज मूव डाउन. जैक ऊपर की तरफ जा रहा है और जिल नीचे की तरफ जा रहा है. उसका मतलब है कि आपका जो पाइवट है, आपका लेवर है, और दिस सीसॉ इज मूव एंटी क्लॉकवाइज. आपका जो सीसॉ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सीसॉ इज बैलेंस एंड द सेकंड सीसॉ इज नॉट बैलेंस. सेकंड सीसॉ बैलेंस नहीं है. ठीक है, and this is both seesaws is basically the lever. ये lever है. lever क्या है? एक सिंपल मशीन है जो हम यूज करते हैं लोड को, वेट को लिफ्ट करने के लिए, वेट को उठाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, बेसिकली दिस बेस्ड ऑन द पाइवट. एक पाइवट पे बेस कर रहा होता है, एक वो पॉइंट जहाँ पे क्या आपका लेवर जिसकी वजह से मूव कर रहा होता है. चलिए से डिटेल में मैं रीड कर रही हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि फिर हम जो है कल इस तरह की टेस्ट सेल्फ करेंगे, और जब टेस्ट सेल्फ करेंगे तो आप जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा. ठीक है, people have used lever for thousands of years. लोग जो है लेवर को हजारों साल से यूज कर रहे हैं. about 50,000 years ago. ठीक है, आप सोच सकते हैं कितने 50,000 years पहले से जो है लोग जो है वो लेवर को यूज कर रहे हैं. the Egyptian used lever and other simple machine to move heavy block to stone to build the pyramids. ठीक है, ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जब इजिप्शियन ने पिरामिड्स बनाए थे. तो आपने देखा है पिरामिड्स कितने बड़े बड़े, बहुत ह्यूज हैं, और ये बड़े बड़े जो है वो रॉक से बनाए गए. सो दिस रॉक इज लिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ दिस लेवर. इस लेवर की मदद से ही जो है वो ये जो है वो लोड लिफ्ट करके ले आए गए और इतने ऊपर तक पहुंचाए गए. आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो है वो पिरामिड्स बने हुए. उस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, तो इस तरह के लेवर्स को यूज करके उन्होंने जो है वो इस बड़े बड़े हैवी लोड जो रॉक से उनको ऊपर तक पहुंचाया. ठीक है, यहाँ तक आप सबको